अभी भी 2 हफ्ते ऑलमोस्ट बचे हैं and FIIs have sold 80,000 crores into the market. With this number, which we have never seen in the last 2 years. And at the same time, almost 90% of that particular selling is absorbed by DII. And we are just 5% down from all-time high. देखिए FII DI का जो डेटा है करंटली अगर आप देखिए तो सबसे हाईएस्ट सेलिंग 80,000 crore. ये तो मतलब इवन आई हैवंट सीन इन लास्ट 13-14 years since 2011. और पहले इतनी सेलिंग होती थी मार्केट में ग्रोथ करके पता लगना था. बट हमने ड्रॉप करी वो सेलिंग एंड वी आर जस्ट 5% फ्रॉम ऑल टाइम हाई. तो दैट शोज कि हमारी डेप्थ निफ्टी की बहुत अच्छी हो गई है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो गया और ऑब्वियसली उसको समवॉट 90% दिया है इजीली अब्सॉर्ब करा है. Hello everyone, welcome back to weekly analysis from SAS Online. And अक्टूबर 19 को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. अभी भी 2 हफ्ते ऑलमोस्ट बचे हैं and FIIs have sold 80,000 crores into the market. With this number, which we have never seen in the last 2 years. And at the same time, almost 90% of that particular selling is absorbed by DII. And we are just 5% down from all-time high. I mean, it may rhyme, but this shows the depth of the Indian equity market. And this becomes very important for us to analyze the entire week and how we will approach the coming week ahead. So we'll start with weekly chart analysis of Nifty and Bank Nifty. We'll understand the trend, the larger picture, and then after that, we'll try to look at the shorter time frames. So we're going to look at the daily chart, we're going to look at hourly charts. With the weekly chart inside, we'll try to look at the trend, but on the daily chart, we'll try to understand what is the candlestick pattern and importantly, sentiment. In the hourly chart, we'll try to understand support and resistances and looking at those support resistances and keeping the broader picture in our mind, we try to create a strategy for coming days. After that, we're going to look at other data points such as FII, DI, which is very important. But more often, we have seen that the selling pressure in the market by the FII has become irrelevant. Anyhow, after FII, DI data, we'll go to derivatives market and understand the open interest, the concentration of that particular range of the open interest, and where we might see ourselves in coming week. Along with that, we'll try to look at put call ratio for Nifty and Bank Nifty. Also, what's the at the money IV pointing to. After that, we're going to look at domestic and international data, and we'll try to conclude the video with the strategy. So let's go ahead and put our first thing, which is very important, into perspective, and that is more importantly the trend. See, when we look at the trend of the overall Nifty, from all-time highs, if you see the drawdown in the last 1 year, we have sustained a drawdown of around almost 5 to 6%, barring this sideways zone where we witnessed a drawdown of 15%. Now, in a bullish market, 5%, 6% drawdown, which has been sustained, we are at that critical point. So, obviously, when we look at this particular chart, we might say that, this can be the particular day. Considering the fact we are still having higher highs and higher lows. After that, we also have this support trend line standing from October 2023. At the same time, you have 20 EMA, which is providing support to Nifty spot at 24,566. And if you see 567.65 is the low. So when we say buy the dip, this one characteristic within a longer trend actually is best candidate to be called as a potential dip. Though we need some confirmation and we'll try to get that through the breadth analysis. So weekly trend is positive, but on the perspective of the breadth and other indicators, we try to look at daily chart of Nifty and see that ADX is at 24.27. Now ADX is still hovering near 25.
that does indicate that the velocity which is off or probably deteriorating due to the consolidation can expand anyway. And at the same time, on the daily chart, if you see there is a clear RSI divergence with Nifty making lower low on the Friday and RSI moving higher and now it's above 30. Second time in last 2 weeks. Very important. So this is what obviously points to the most important aspect कि हम एक oversold zone से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं. We should also look at the breadth of the market. Now, the breadth of the market is one of the very important factors कि the market के internals क्या बोल रहे हैं. So I had this drawdown, we know we are down 5.42%. But if you look at the net new high, net new low, that is positive. And the number of stocks that were below their short-term moving averages like 10 and 20 and 50, इसमें एक हल्का सा uptick आया है. एंड मार्केट बेसिकली 20 और 10 और 20 और 50 ईएमए के नीचे है. बट मार्केट इंटरनल्स जो बेसिकली नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं एनएससी में उनमें एक अपटिक आया. तो दैट शोज कि देयर इज स्टिल अ गुड बाइंग व्हिच हैज बीन डन एट द लोअर लेवल. दैट बीइंग सेड, हमने आरएसआई देख लिया, एडीएक्स देख लिया. वी नीड कम डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम एंड अंडरस्टैंड कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है. विल मूव टू October futures chart and we'll see कि RSI जो basically एक oversold zone में था on higher time frame that is now at 62. That is good. मतलब वो एक तरफ से upward momentum जो हमको साइड को देखने को मिला, that is going to indicate कि लोअर लेवल्स पे बाइंग है और अपवर्ड मोमेंटम और सस्टेन हो सकता है. दूसरी बात, एडीएक्स अभी भी 25 के ऊपर है. ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी अच्छी है. सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं हम. मोर इम्पोर्टेंटली कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है. ठीक है, निफ्टी अक्टूबर की जो क्लोजिंग है 24,965 24,960 के आसपास है. सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट पहला कहाँ बनता है? 24,630. ये वीकली चार्ट पे 20 ईएमए का लेवल है. और अगर आप इसको यहाँ पर देखें आवरली पे, तो 24,630 के बाद जो सपोर्ट बनेगा दैट इज एग्जैक्टली एट 24,475. तो कहीं ना कहीं ये वाला एक टॉप है और मार्केट ने ये वाला टॉप काफी कुछ ब्रेक कर कर एक अपवर्ड मोमेंटम शुरू करा था. एंड पिछली बार भी इसने एक रेजिस्टेंस का काम करा था तो 24,475 और उसके नीचे तो भी 25,410. बट फॉर द टाइम बेइंग 24,600 का जो लेवल है वो एक 20 ईएमए का लेवल है वो, और 24,475 आर द टू लेवल्स ऑन द डाउन साइड. स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली हम कॉशियस रहेंगे क्योंकि निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स है, मैनेजेस टू हैव 50 कंस्टिट्यूएंट, तो उसमें एकदम फ्रेश मोमेंटम इतना इजीली बनता नहीं है. इट नीड्स अ गुड बाइंग इन द ओवरऑल मार्केट. बट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखिए 24,962 पे क्लोजिंग है. वी बिलीव दैट पहला रेजिस्टेंस 25,100 के आसपास है विच इज द प्रीवियस स्विंग हाई. एंड यहाँ से हमने एक सेलिंग देखा था. तो यहाँ पर जो 25,090 25,100 है वो पहला रेजिस्टेंस है. और ऑब्वियसली दूसरा रेजिस्टेंस 25,300 पे है. अगर आप यहाँ पर स्विंग चार्ट्स भी देखें और स्पेसिफिकली निफ्टी का देख रहे हैं स्विंग हाई स्विंग लो, तो निफ्टी का जो स्विंग लो था 24,890 के ऊपर फ्यूचर बंद हुआ है. पहली बात तो वो. दूसरा, अगर आप ऊपर देखें तो लास्ट जो स्विंग हाई था वो 25,300 के आसपास ही है. तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑन द हायर साइड. उसके बाद फिर वी हैव मच हायर टेरिटरी टू गो. बैंक निफ्टी ऑन द अदर साइड हम वीकली चार्ट देखेंगे. बैंक निफ्टी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज लास्ट वीक हमने बोला था देखो यार 51,000 50,700 आर द लेवल्स टू वॉच एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन जो है ये कैन बी द लाइन इन द सैंड. आई मीन ये कितनी बार टेस्ट हुई है पिछले 1 से 1.5 साल में. और उस 1 साल में इसने जब जब यहाँ पर आई है सपोर्ट लेकर अपवर्ड मोमेंटम इसने सस्टेन करा है. अगर आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं तो वीकली चार्ट पे 51,353 20 ईएमए का सपोर्ट है. 50 ईएमए इसकी काफी नीचे आती है 49,245. बट अगर वीकली चार्ट पे वी हैव 51,350 जो 20 ईएमए है तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और वही ट्रेंड लाइन के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है. तो यहाँ से वी कैन से कि एक वर्ड मोमेंटम बनना चाहिए.
डेली चार्ट पे आ जाते हो। डेली चार्ट पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि फ्राइडे का जो प्राइस एक्शन था उसने बेसिकली पूरी जो रेंज थी मार्केट की उसको इन्गल्फ करा। अगर आप ये कैंडल का देखें लो और फ्लो बेसिकली क्लोज, उसने पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग दिन का पूरा प्राइस एक्शन इनगल्फ कर लिया एक ही दिन में। मतलब कि जिन्होंने भी इस पीरियड में कुछ पोजीशन शॉर्ट बनाई हो, लॉन्ग बनाई हो तो ठीक है, पर शॉर्ट बनाई हो अगेंस्ट द बिगर ट्रेंड जो हायर हाई हायर लो का, तो वो तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग ऑब्वियसली आनी चाहिए और वो ऑप्शंस में भी दिखेगी हमको। तो दिस इज अ वेरी गुड बुलिश एंगल्फिंग। प्रॉब्लम ये है कि हम जब लो टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन जाते हैं। देखिए ये लो टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, और ये पूरा जो एक रेंज थी उसको अभी भी इसने सस्टेन करा है। हम ये नहीं बोल सकते इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी, बट वी बिलीव कि अच्छा संकेत है कि बैंक निफ्टी ने वो पर्टिकुलर लोअर लेवल सस्टेन करा और ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। हम जो बोले थे क्रिटिकल पॉइंट ये है, बेसिकली ये एक चैनल है विद इन दिस बेयरिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है, ये एक चैनल था। तो स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली कीपिंग द ब्रॉडर पिक्चर हमको बाय ऑन डिप्स की रखनी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ऑब्वियसली प्राइस में एक्सपांशन आया तो एक साइडवेज मोमेंटम आ सकता है। सपोर्ट क्या बनता है जो हमको यूटिलाइज करना है। देखिए सबसे पहला सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग है 52,310 की है। सपोर्ट जो सबसे पहला बनता है वो लोअर चैनल पे बनता है, वो है 52,800। 51,800 जो है सबसे पहला सपोर्ट बनता है जो ट्रेंड लाइन के आसपास आता है। दूसरा जो सपोर्ट बनता है वो 50,700, ऑब्वियसली लोअर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर रेंज, जो मतलब लाइन इन द सैंड है, इसके वो नीचे गई तो हम साइडवेज हो गए या करेक्शन और आ सकता है। पर जब तक 5700 के ऊपर है, हम ऊपर ही रहेंगे तो स्टार्टिंग फिलहाल तो बाय डिप्स है। तो हमें लगता है अगर ये थोड़ा सा सस्टेन करा यहाँ से और बैंक निफ्टी ऊपर गई तो वी मे अगेन सी द लेवल्स ऑफ 54,000, बट उसके लिए कुछ रेजिस्टेंस क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है ऑन इमीडिएट बेसिस वो 52,750 का है, जो एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही आता है चैनल की। इसको अगर हर्डल क्लियर करता है तो ये गैप जो मार्केट ने छोड़ा था, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। गैप्स का काम ही वही होता है, या तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं अगर वो फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो 53,353 200 का जो लेवल है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली पैकेज बाउंड डिप्स है, बट आप यूजफुल डिप टूवर्ड्स 51,800 और 50,700, यहाँ तक के यू कैन सी की एक बाइंग बननी चाहिए। रिवर्स पोजीशंस कहाँ पर हो जहाँ पर हमको अपना माइंडसेट चेंज करना है, दैट इज निफ्टी में 24,800, ये स्पॉट का लेवल है, और बैंक निफ्टी में 50,700, ये भी स्पॉट का लेवल है। और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमने फीचर्स में बनाया है। फटाफट से एडवांस डिक्लाइन पे आ जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एफ आई आर डी आई का डेटा। देखिए एफ आई आर डी आई का जो डेटा है करंटली अगर आप देखें तो सबसे हाईएस्ट सेलिंग 80,000 करोड़। ये तो मतलब इवन आई हैवंट सीन इन लास्ट 13-14 years since 2011। और पहले इतनी सेलिंग होती थी तो मार्केट में लोअर सर्किट का लगना था, और हमने एब्जॉर्ब करी वो सेलिंग एंड वी आर जस्ट 5% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो दैट शोज कि हमारी डेप्थ निफ्टी की बहुत अच्छी हो गई है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हो गया, और ऑब्वियसली उसको समवॉट 90% डीआईएस ने इजीली अब्सॉर्ब करा है। ये इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ आई एस की पोजीशन है, दे आर नेट नेगेटिव 33,240 ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेलिंग। एंड इंडेक्स ऑप्शंस में दे हैव अ नेट नेगेटिव ऑफ 51,753। एक पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पर दे दूंगा कि एफ आई एस फिलहाल सितंबर में 12,000 करोड़ की सेलिंग बाइंग के सिलसिले गए थे। अब वो इससे जो कंबाइंड सेलिंग है उनकी अक्टूबर की, उतनी उनकी कंबाइंड अप्रैल और मई की सेलिंग नहीं थी। उसके पहले भी ऐसा कोई हमको डेटा नहीं मिला जहां पर हमको कंटिन्यूस सेलिंग दिखी है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज या कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है। दैट वाज इन अक्टूबर 21, 18 और 19 अक्टूबर के आसपास ही ये हुआ था, टॉप बना था 2021 में। एंड इतनी सेलिंग के बाद उस समय मार्केट बेसिकली अगर आप देखें निफ्टी स्पेसिफिकली एक साइडवेज मोमेंटम में गई थी, एंड दिस वाज दैट पर्टिकुलर टॉप। यहाँ से एक साइडवेज मोमेंटम आया था। So we need to be very sure और वेरी क्लोजली वॉचिंग प्राइस एक्शन की यहाँ से निफ्टी जाती कहाँ है। एडवांस डिक्लाइन
mixed numbers है, but because of the buying which we have witnessed, specifically in banking and finance, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में तेजी आई। ये bearish sentiment across the sectors है, बस बैंकिंग और फाइनेंस, और बैंकिंग में भी आप देख लीजिए वीकली बेसिस पे विनर्स थे फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे लीड करने वाले स्टॉक्स अगर बैंक निफ्टी कंटेन चेंज करती है साइड, तो ये, और फाइनेंस में एचडीएफसी, ईएमसी, एचडीएफसी लाइफ, ऑब्वियसली एक रूमर है कि इंश्योरेंस में जो एचडीएफसी का लगाया था प्रीमियम्स पे, उसका बेनिफिट आई थिंक एचडीएफसी लाइफ को भी मिलना चाहिए। ओवाई डेटा हम देख लेते हैं एट 24,800 टू 25,200। ये दो लेवल्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ज्यादा कंसंट्रेशन भी नहीं है, ओवाई चेंज भी हुआ है, तो ये रेंज के बाहर निकलेंगे तो विल वी गेट अ डायरेक्शनल मूव। बैंक निफ्टी का काफी इंटरेस्टिंग रहा है हफ्ता, क्योंकि आखिरी फ्राइडे को जो बाइंग आई थी, उसकी वजह से जो चेंज आया है ओपन इंटरेस्ट में, वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। एंड ऑब्वियसली इतना बड़ा चेंज अगर आया है बैंक निफ्टी में, तो वी सी दैट नीचे जो भी एक शॉर्ट बिल्डअप था उनमें शॉर्ट कवरिंग आई है, बेसिकली ऑन द फोर्थ साइड, एंड ऑन द हायर साइड हमने फ्रेश एडिशंस देखे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल तो 52,500 है। वो अगर पार करता है 52,800 का एक तो जोन है जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इमीडिएट सपोर्ट बैंक निफ्टी का भले ही 52,360 है, पर इमीडिएट सपोर्ट अभी भी 52,000 ही है। तो 52,000 और 51,800 ये दो ऐसे लेवल से बैंक निफ्टी में टेक्निकली आपको याद रखने चाहिए। पुटफॉल रेशियो हमने लास्ट वीक भी बोला था, देखिए पुटफॉल रेशियो स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए तो ओवरसोल्ड में था, एंड वो काफी कुछ अपवर्ड मोमेंटम उसमें बना है। बट ये जोन जो पुटफॉल रेशियो का है, दिस इंडिकेट्स कंसोलिडेशन, और हमने भी वही बोला था कि देखिए एक रेंज है 24,800, 25,200, और वही रेंज सस्टेन हुई है, फ्राइडे की क्लोजिंग उसके ऊपर ही हुई है। तो करंटली भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही होगा, जब तक कि एक वो रेंज ब्रेक नहीं होगी। वी मे नॉट सी अ डायरेक्शनल मूव। एट द सेम टाइम जो निफ्टी की एट द मनी आईडी है वो बहुत कम है, 10.3 है, विच इंडिकेट्स ऑलमोस्ट three fourth ऑफ अ परसेंट मूव ऑन इंट्राडे बेसिस। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड काफी ड्रास्टिक चेंज हुआ है, एक ही दिन में पूरा ओवाई का स्टैटिस्टिक्स बदल जाता है। और वही बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, पुट कॉल रेशियो सडनली जो 0.6 था, हमने बोला था कि ओवरसोल्ड है, 50,700, 51,000 नहीं तोड़ेगा, और हुआ भी वही, एक ही दिन में 900 पॉइंट की रिकवरी आई। और अगर आने वाली एक्सपायरी में देखें तो एटीएम जो है करंटली 12.4 है, इंट्राडे बेसिस पे 1% से कम ही मूव आएगा। और जो पीसीआर है वो बता रहा है कि काफी स्ट्रेस्ड है, इसलिए आने वाले वीक में यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन कंसोलिडेशन विद द बुलिश बायस। तो रिमाइंड yourself to use the dips to trade on the long side। डेटा फ्रंट में डोमेस्टिक में इतना कुछ खास डेटा नहीं है। एचएसबीसी का डेटा है जो कंपोजिट पीएमआई है, और मैन्युफैक्चरिंग है, और सर्विस पीएमआई है। ये प्रीवियसली तो ठीक थे, एक्सपेक्टेड जो इनकी फोरकास्ट है तीनों की, उसमें अगर कुछ सरप्राइज होता है तो इट माइट अफेक्ट स्पेसिफिकली द सेक्टर। इंटरनेशनल डेटा में भी देखो 2005 से कभी भी फेड में किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने रेट कट्स का अपोज नहीं करा है, बट जो 0.50 बीपीएस की हुई थी उसको फेड मेंबर बॉमेन ने सिंस 2005 ही इज द फर्स्ट वन टू से कि 0.25 बीपीएस काफी था। उसके ऊपर चर्चा होगी आने वाले हफ्ते, और पूरा वीक आप देखेंगे कि फेड, ये जो बॉमेन है, इन्होंने अपोज करा था, दिस इज द पर्सन हु अपोज 0.50 बीपीएस एंड सजेस्टेड 0.25 इज इनफ। बट पूरे हफ्ते वही चलेगा, फेड mid, Hawker, and then you have Hammer, all these speeches, but the important data point is specifically initial jobless claims, और एक जो डेटा आएगा वो फ्राइडे को आएगा, विच इज ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ और मंथ। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पर ये इतना अफेक्ट नहीं करेंगे। हेंस नेक्स्ट वीक प्राइस इज वन थिंग विच वी हैव टू फॉलो, एंड स्पेसिफिकली जब हम बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स में हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, पूरी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी है। वी बिलीव यू विल हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड विद दिस आई विश यू अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।